Your camera. Students who are having low open rates. Behind big people, hosting them, talking to them, grassroots level people. Sagar, I am out of the frame. Shall I refresh it again? Because this is my position. That's it. Okay. Before the break, we were looking at some wrong teachings which were going on in the early church time about Jesus. और पहले शताब्दी के कलीसिया के समय पर जो गलत शिक्षाएं यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा था उसके बारे में हमने देखा. So there were wrong teachings about his divine nature. उसके दिव्य स्वभाव के बारे में गलत शिक्षाएं सिखाए जा रहे थे. People said that Jesus was divine only temporarily. और तात्कालीन रीति से ही यीशु मसीह जो है दिव्य था करके लोग सिखा रहे थे. They said that when he was hanging on the cross, the spirit of the Messiah left him and he became a normal person. और उन लोगों ने ये सिखाया कि जब यीशु मसीह जो है कल्वरी क्रूस पर लटका हुआ था उस समय जो है उसकी मसीह की आत्मा जो उसके अंदर थी वो उसको छोड़कर चली गई, वो एक साधारण मनुष्य बन गया. So that was the wrong teaching about the divinity of Jesus. वो है एक गलत शिक्षा उसके दिव्य स्वभाव के बारे में. In the same way, there were wrong teachings about the humanity of Jesus also. और उसी प्रकार परमेश्वर यीशु के मानवता के विषय में गलत शिक्षाएं दिए जा रहे थे. At that time, the Greek culture had a lot of influence. और उस समय यूनानी संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव था. The Greeks believed that anything material, it is evil. और यूनानी लोग मानते थे कि कोई भी चीज सामग्री जो है वो इस दुनिया का है वो गलत है. So they believed that a person who is just a pure spirit, they can be pure. और वो लोग ये मानते थे जो पूर्ण रूप से आत्मा पे हैं वो ही सही है. But if a person has got a body, the body is material. लेकिन अगर एक व्यक्ति को एक शरीर प्राप्त है तो वो इस दुनिया का सामग्री है. So because he has flesh, he is not pure. क्योंकि उसके पास शरीर है इस कारण से वो पवित्र नहीं है, नहीं तो निर्मल नहीं है. So for them it was very difficult to accept that God can have human flesh. और ये उनके लिए बहुत कठिन बात था समझने के लिए कि परमेश्वर को एक मानुषिक शरीर हो सकता है. Because they believed anything which is material must be unclean. और वो लोग बोलते थे इस दुनिया के तत्वों से बने हुए शरीर जो है वो गलत है, वो शुद्ध नहीं है. Exactly, they said it was impure. वो लोग मानते थे कि वो अशुद्ध है. So that is why they began to teach a wrong teaching.
इसीलिए उन लोगों ने एक गलत शिक्षा को प्रचार किया। Christians who were influenced by Greek philosophy, they began to wrongly teach. और वो मसीही लोग जो यूनानी वेदों के अनुसार के कारण प्रभाव में आ गए थे, उन लोगों ने ये गलत शिक्षा देना शुरू किया। Jesus didn't really have an actual physical body. और यीशु मसीह को सही रीति से एक शारीरिक शरीर नहीं था। It looked like a physical body, but actually he didn't have a physical body. वो एक शारीरिक शरीर के समान दिखता तो था, लेकिन उसके पास एक शरीर नहीं था। That is why in 1 John chapter 1 verse 1, इसीलिए यूहन्ना रचित समाचार 1:1 में John says something very important. यूहन्ना जो है एक बहुत ही मुख्य बात को बोलता है। If someone can read out 1 John 1:1. कोई पढ़ दे यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। एक और पढ़ें जोर से। 1 John. पहला यूहन्ना Really? So John says, this Jesus, we actually touched him with our hands. यूहन्ना बोलता है इस यीशु को हमने अपने हाथों से छुआ है। He mentions that detail because he wanted to explain वो इस बात को वो बताना इसलिए चाहता था ताकि they will understand that Jesus had an actual physical body. ताकि वो लोग समझ जाएं सही रीति से उसके पास एक शरीर था। So Jesus was fully God, यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर था, but he was also fully human. उसी समय वो पूर्ण रूप से मानव भी था, मनुष्य भी था। So just because Jesus is divine, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर दिव्य था, सॉरी यीशु दिव्य था, don't think that he was not completely human. वो ऐसा ना सोचे कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं था। He was fully God, वो पूर्ण रूप से परमेश्वर था, but he was completely human also. वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी था। He would sweat just like us. वो हमारे ही तरह पसीना उसको आता था। Like us, he also used to get tired. हमारी तरह वो भी सुस्त पड़ जाता था। So he had all the human limitations which we have. हमारे पास जो मानुषिक सीमाएं थी उसके पास भी वो था। Because there was one wrong teaching which they were teaching at that time. उस दशक में एक गलत शिक्षा देने के कारण They were saying, yes, some people were saying, okay, Jesus had a human body, we'll agree. और कुछ लोग बोलते थे कि सही है, हम मान लेते हैं कि यीशु मसीह के पास शरीर था, But his soul was not human. लेकिन उसकी आत्मा जो है मानुषिक नहीं था, It was not limited. वो सीमा रहित नहीं था। But the truth is that even in his soul, he was human. और वो उसकी आत्मा में भी मनुष्य था। What is the soul made up of? आत्मा किस तत्व से बना हुआ है? Mind, correct. Mind, will, emotions. मन, इच्छा और भावना। Jesus was fully human even in his soul. और उसकी आत्मा में भी वे पूर्ण रूप से मनुष्य था। So when he was a little boy, he did not know everything. और जो वो जब एक छोटा बालक था, उसको सारे बातों में ज्ञान नहीं था। Jesus as God, he was all knowing. यीशु सर्व ज्ञानी परमेश्वर था। But when he became a human being, he allowed himself to have a limited mind just like us. और जब यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आया, तो उसने अपने दिमाग को हमारी तरह सीमित कर दिया।
That is why he says in Mark 13:32, इसीलिए मरकुस 13 के 32 में कहता है, if someone can read out. पढ़िएगा, मत्ती 13 का 32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता। He says nobody knows when the second coming will happen. वो मरकुस कहता है कोई नहीं जानता, उस यीशु कह रहा है, Jesus himself says. यीशु कहता है कि वो घड़ी कोई नहीं जानता कि वो वापस कब आएगा। Not even the son knows. पुत्र भी नहीं जानता इस विषय को, Only the father knows. सिर्फ पिता जानता है। So when Jesus was on the earth in his physical body, जब यीशु मसीह शारीरिक मनुष्य शरीर में जब इस धरती पर था, he allowed even his mind also to be limited just like humans. और मनुष्य के समान उसके दिमाग को भी उस सीमित रीति से उसने कर दिया था। That is why in Luke chapter 2 verse 46, इसलिए लूका रचित सुसमाचार 2 का Luke 2:46, if someone can read out. और 3 दिन के बाद उन्होंने उससे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। It says over there that Jesus was sitting with the teachers asking them questions. और वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है गुरुओं के साथ बैठकर उनसे सवाल कर रहा था। He's learning the Old Testament scriptures. वो पुराने नियम को सीख रहा था। He has many doubts in his mind and is clearing all his doubts. उसके दिमाग में कई विषयों के विषय में संदेह है और उसको वो सही कर रहा था, उसमें से सीख रहा था। So Jesus was completely human like all of us. और हमारे ही जैसा पूर्ण रूप से वो मनुष्य था। But he was a human with a difference. लेकिन वो मनुष्य था जो एक अंतर के एक व्यत्यस्त रूप से था। He called himself the Son of Man. वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। In Matthew chapter 9, मत्ती 9, there's a story about a paralyzed man. एक लकवा पाए हुए एक व्यक्ति के बारे में कहानी है। His friends bring him to Jesus on a mat. और एक चटाई पे लिटाकर उसके लकवा मारे हुए व्यक्ति के दोस्त लोग यीशु के पास लेके आते हैं उसको। In Matthew 9 verse 2, Jesus says to the man, मत्ती 9 के 2 में यीशु उस आदमी से कहता है, he said, "Take heart, son, your sins are forgiven." दिल में धीरज रख, तेरे पाप माफ किए गए हैं। The teachers of the law who are sitting over there, और वो जो शास्त्र के अगुए जो वहां पर बैठे हुए थे, they get very angry. वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। They say this man is committing blasphemy. वो कहते हैं ये परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है। How can anybody forgive sins? और कैसे एक मनुष्य एक दूसरे व्यक्ति के पाप को माफ कर सकता है? And then this is what Jesus says in Matthew 9 verse 6. मत्ती 9 के 6 में यीशु उत्तर देता है। If someone can read out Matthew 9:6. मत्ती 9 का 6। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। Jesus says the Son of Man has got the authority to forgive sins. और यीशु कहता है कि मनुष्य के पुत्र के पास अधिकार दिया गया है कि इस धरती पर पाप को क्षमा करें। Why did Jesus use the term Son of Man? क्यों यीशु मसीह ने मनुष्य का पुत्र करके वो शब्द को इस्तेमाल किया? He uses the term in front of the teachers of the law. और नियम के पंडितों के सामने यीशु मसीह ये शब्द को इस्तेमाल करता है। Because the teachers of the law will know the significance of that term. और उस शब्द का प्रमुखता जो है वो वेद गुरु जानते थे। Daniel chapter 7
verses 13 and 14. दानियल की किताब 7 का 13 और 14। Over there it talks about the Son of Man. दानियल 7 राइट 7, 7 का 13. 13 और 14 में वहां पर मनुष्य के पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। If someone can read out. पढ़िएगा। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। It says over there, the Son of Man was given authority, glory, and sovereign power. और उसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के पुत्र को सर्वोच्च अधिकार और महिमा और Sovereign power. और सर्वोच्च अधिकार दिया हुआ है। So that is why Jesus says, I am that Son of Man. और यीशु मसीह कहता है मैं हूं जो वो मनुष्य का पुत्र। That is why I have the authority to forgive sins. इसी कारणवश मेरे पास अधिकार है कि मैं पाप को क्षमा कर दूं। So when Jesus calls himself I am, he's talking about his divinity. और जब यीशु मसीह मैं हूं करके बोलता है वो उसकी दिव्यता के विषय में बोलता है। In the same way, when he calls himself Son of Man, also he's talking about his divinity. और जब वो मनुष्य का पुत्र करके अपने आप को बोलता है उस समय भी पर उसमें एक दिव्यता के विषय में बातचीत करता है। So Jesus he never lost his divinity. यीशु मसीह ने कभी भी अपने दिव्यता को खोया नहीं था। Yeah, so let's look at Philippians chapter 2 verses 6 and 7. फिलिपियों की पत्री 2 का 6 और 7 पढ़िएगा। फिलिपियों 2 का 6 और 7। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। It says here that Jesus made himself nothing. यहाँ पर कहा जाता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। So that is why people wrongly think that Jesus gave up his divinity. इसीलिए लोग गलत समझ जाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने दिव्यता को त्याग दिया। He never gave up his divinity. उसने अपने दिव्यता को कभी भी त्यागा नहीं था। Even though he continued to be divine, वो दिव्य होने को जारी रखा है, but he made himself shunya. लेकिन उसने अपने आप को शून्य नहीं तो खाली कर दिया। So, Empty. yeah, because he made himself nothing. Fine. Yeah. Okay, so how do we understand this हम term? इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? Because you see, if you remember, yesterday we were talking about Colossians 2:9. कल हम जो है कोलोसियों 2 का 9 को हम देख रहे थे। Over there it said, वहां पर कहा गया था, in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. और मानुषिक रूप शरीर के अंदर परमेश्वर की सारी दिव्यता वास करता है। So when it says that Jesus made himself shunya, जब यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने आप को शून्य बना देता है, he has not lost the divinity. उसने अपने दिव्यता को खोया नहीं है। All the fullness of the deity is living inside him in bodily form. और शारीरिक रूप में उसके अंदर सारी दिव्यता वास कर रहा है। But in spite of that, he has made himself shunya. That is why Kali is actually a wrong word Okay, actually. thank you. So तो उसने उस रीति से देखा जाए तो फिर भी उसके अंदर वो दिव्यता वास करता था, फिर भी अपने आप को शून्य बना दिया। let's use the example of a car. एक कार का उदाहरण लेंगे हम। One of the costliest cars in the world is the Mercedes Benz. सबसे महंगा गाड़ी जो है मर्सिडीज बेंज।
if someone in India wants to buy that, that is basically 3 crore rupees. और कोई हिंदुस्तान में खरीदना चाहता है तो 3 करोड़ है। Uh, a normal car can go at the speed of 160 kilometers per hour. एक साधारण गाड़ी जो है 160 किलोमीटर की तेजी से जा सकता है। Mercedes Benz, on the other hand, can go at 250 kilometers per hour. लेकिन मर्सिडीज बेंज जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा के तेजी से जा सकता है। It has a very powerful engine. उसके अंदर जो इसका इंजन है बहुत ही पावर के साथ वाला है। So let us imagine that one Mercedes Benz is there in front of your gate. और एक भावना करें कि आपके घर के सामने मर्सिडीज बेंज खड़ा हुआ है। You take a old plastic sheet and then you cover the car with a plastic sheet. और एक पुराने एक प्लास्टिक को लेते हो, आप उसको ढक देते हो। So people who are passing by on the road, they will look at the covered car. और लोग जो उस रास्ते से चल रहे हैं वो लोग इस ढके हुए गाड़ी को देखते हैं। They'll think, oh, okay, it's a normal car. ठीक है, ये तो एक साधारण गाड़ी है। They don't know what is there under the plastic sheet. लेकिन उस प्लास्टिक चादर के नीचे क्या है, कौन सी गाड़ी है, उनको नहीं मालूम। That car has made itself shunya. और वो कार ने जो है, कार जो है वो शून्य हो चुका है। It has made itself shunya, but it's actually not powerless. वो शून्य हो चुका है लेकिन उसके अंदर पावर नहीं है, हम नहीं कह सकते। वो कार अपने आप को शून्य किया है, पर उसका पावर अभी भी है। अभी भी उसका पावर है, पर अपने आप को ढक के शून्य, हाँ, like that. So Jesus never lost his divinity. उसी प्रकार यीशु मसीह ने अपनी दिव्यता को कभी भी खोया नहीं। The fullness of the deity was residing inside him. और परमेश्वर की दिव्यता जो है उसके अंदर वास करता था। But he covered himself with humanity. लेकिन उसने अपने आप को मानवता से ढक लिया था। So people who are looking at him, they'll say, oh, he's an ordinary man. और जो लोग उसको देखते थे, वो जब देखते थे वो लोग बोलते थे ये तो एक साधारण मनुष्य है। But on the inside, the full power of God. We talked about God being all powerful. All powerful is still there inside. लेकिन वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर जिसके बारे में हमने कल सीखा था, वो अभी भी उसके भीतर में है। But when Jesus became a human being, he humbled himself. लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य बन गया, उसने अपने आप को नम्र बना दिया। He decided to make himself shunya. उसने निर्णय लिया कि मैं अपने आप को शून्य बना दूंगा। So he never used his all powerful power even once. और उसके सर्वशक्ति को कभी भी उसने एक बार भी इस्तेमाल में नहीं लाया। If you remember, after Jesus finished his 40 days of fasting, 40 दिन के उपवास के बाद अगर देखें, आपको याद है तो Satan comes to him and says, you must be very hungry now. और शैतान आता है, कहता है तुम अभी बहुत भूखे हो सकते हो। 40 days you have fasted. 40 दिन तुमने उपवास लिया, So now you must be quite hungry. अब बहुत भूखे होंगे। But God has not yet supplied the food, you see. और परमेश्वर ने देखो अभी तक तुम्हारे लिए आहार नहीं दिया। Jesus is waiting patiently. और सहज के साथ परमेश्वर, धीरज के साथ परमेश्वर रुका हुआ है। So the 40 days of fasting is over, it's finished. 40 दिन का उपवास खत्म हो चुका है, But the food has not yet come. आहार जो है, खाना जो है अभी तक नहीं आया है। So Satan says, oh, you're saying your God is it. और शैतान बोलता है, अच्छा तुम अपने आप को परमेश्वर कहते हो। If you're the son of God, then take these stones and make them into bread. और अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, इस पत्थर को उठा लो और उसको रोटी बना दो। Then I will believe that you're the son. और तब मैं विश्वास करूंगा कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। But what does Jesus reply? लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? Man shall not live by bread alone. मनुष्य जो है अपने रोटी के ही आधार पर नहीं जीवित रहता।
he actually lives, by the word of God. वो सही मायने से परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवित रहता है, Because the Father has told him, go, become human and be a sacrifice for the people. क्योंकि पिता परमेश्वर ने कहा है कि जाओ मनुष्य बनो और मनुष्य के लिए एक बलिदान बन जाओ। How can he use his power now? अब उसका शक्ति को कैसे इस्तेमाल में ला If, सकते हैं? if he uses his power, then he's not being fully human. अगर वो अपनी सामर्थ को इस्तेमाल कर ले तो वो पूर्ण तरीके से मनुष्य नहीं कहलाया जा सकता। So Jesus refuses to convert those stones into bread. और यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी बनाने से मुकर जाता है। He continues to wait patiently for the Father to provide the food. और वो जारी रखता है अपने आप को और सहज के साथ इंतजार करता है कि पिता परमेश्वर उसका आहार भेजे। And then the angels come and they bring him food and they minister to him. और तब दूत गण जो है उसके पास खाना लेके आते हैं और उसकी सेवा करते हैं। So that is why when Jesus was on the earth, he never used his divine power even once. और जब यीशु मसीह इस धरती पर था, एक बार भी उसने अपने दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। Acts chapter 10 verse 30. प्रेरितों का काम 10 का Sorry, Acts 10:38. प्रेरितों का काम 10 का 38 पढ़िए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So it says over here, God anointed Jesus of Nazareth. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक से भरा। He anointed him with the Holy Spirit and power. और उस परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से भरा। So all the miracles which Jesus did, he did it only with the help of the Holy Spirit. और जो कुछ उसने चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने किया वो पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा। He never used his own power. उसने अपने निजी शक्ति को कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाया। He completely depended upon the Holy Spirit. और वो पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हो गया। Correct. Yeah. Tongue twist. Yes. Tongue twist. जबान नहीं आ रहा था। Okay, so Jesus was obedient and submissive to God the Father to that extent. उस सीमा तक भी यीशु मसीह पिता पर आश्रित था। He never disobeyed or dishonored the Father. वो कभी भी यीशु मसीह ने कभी भी He never disobeyed the Father. अनाज्ञाकारिता परमेश्वर पिता के प्रति नहीं किया। So this is the kind of divinity and this is the kind of humanity which Jesus displayed. और ये तरीके का मानवता और इस तरीके का दिव्यता को परमेश्वर ने यीशु ने दर्शाया था। Why was it necessary for Jesus to be fully human and fully God? क्या जरूरत था यीशु को कि वो पूर्ण तरीके से मनुष्य है या और पूर्ण तरीके से परमेश्वर? Because if he is not fully human, okay, let's put it in a positive way. Only if Jesus is fully human, he can be representative of humans. और अगर वो पूर्ण रूप से मनुष्य है तभी मनुष्य को प्रतिनिधि बन सकता है। If he is only half human, he cannot be representative of humans. अगर वो आधा मनुष्य हो तो वो मनुष्य को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। So he became fully human so that he can be our representative. वो पूर्ण रूप से मनुष्य बन गया ताकि वो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। But it's also important that he should continue being fully God. और उसी समय वो ये भी करना है कि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर भी होना है। Why? क्यों? Because
Only a person who is fully God can go in front of God and say, I will be the mediator between you and people. वो पूर्ण परमेश्वर हो तभी वो परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के सामने जाके प्रतिनिधि कर सकता है और बोल सकता है कि मैं मनुष्य और आपके बीच में एक वकील के समान हूं। A human being can't go and tell God, I'll be your vakil. और वो मनुष्य जो है परमेश्वर पिता के सामने नहीं जाके बोल सकता कि मैं मनुष्य के बीच में एक वकील के समान रहूंगा। God will say, who are you to represent me? और वो परमेश्वर आपसे सवाल करेगा, मेरी प्रतिनिधि बनने के लिए तुम कौन हो? So it's important that Jesus should be fully God and he should also be fully human. इसीलिए वो बहुत ही जरूरी बात है कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से मनुष्य हो और पूर्ण रूप से परमेश्वर भी हो। In his full divinity, he can talk to God and reason with God. और उसकी दिव्यता में, पूर्ण दिव्यता में वो पिता परमेश्वर के साथ बातचीत भी कर सकता है और तर्क वितर्क भी कर सकता है। And as a fully human, he can be our representative. और पूर्ण मनुष्य होने के कारण वो हमारा प्रतिनिधि बन सकता है। He can become a sacrifice for us. और वो हमारे लिए एक बलिदान बन सकता है। All the human beings were full of sin. और मनुष्य जो है पाप से भरे हुए थे। So all the human beings should go to hell. और सारे मनुष्य जो है नरक में जरूर जाना है। But because he is fully human, क्योंकि वो पूर्ण रूप से मनुष्य है, he was able to take the sins of all these humans and put them upon himself. और वो सारे मनुष्य के पाप को लेकर अपने कांधे पर डाल सकता था। If he was only half human, he cannot be our sacrifice. और अगर वो आधा मनुष्य, अधूरा मनुष्य होता तो वो हमारे लिए वो बलिदान नहीं बन सकता था। So that is the importance of the full divinity of Jesus, full humanity of Jesus. वही है पूर्ण मनुष्य और पूर्ण दिव्यता होने का गुण, So लाभ। Jesus is at the very center of our faith. वो यीशु मसीह जो है हमारे विश्वास का मध्य स्थान पर है। If you remove Jesus, there's nothing left for us. अगर हमारे विश्वास के मध्य स्थान से यीशु को हटा दे तो हम कुछ भी नहीं। And people are saying today, oh, Jesus was just a fictional character. और आज लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जो है एक मन धड़क कहानी थी। They say, no, in history, he was not actually there. लोग कहते हैं इतिहास में वो नहीं था। And how can we, argue with people like that? और ऐसे बोलने वाले व्यक्ति के साथ हम कैसे तर्क वितर्क कर सकते हैं? They say, oh, this happened thousands of years ago. और वो लोग कहते हैं ये हजारों साल पहले हुआ था। At that time, who knows whether somebody named Jesus actually lived or not? और कौन जाने कि उस दशक में यीशु करके ऐसा कोई व्यक्ति जिया था। Christians are saying Jesus was there. मसीही लोग बोलते हैं यीशु था। But what is the proof that Jesus existed? प्रमाण क्या है कि यीशु मसीह था? We have ancient historical records. हमारे पास पुराने इतिहास रचित प्रमाण है that Jesus actually existed. कि यीशु मसीह सच में था। First century and second century writings, पहला शताब्दी और दूसरे शताब्दी के लिखावट में Jesus is mentioned. यीशु का नाम देखा जा सकता है। There are 39 ancient writings in which Jesus is mentioned. और 39 लिखे हुए प्रमाण है जहां पर यीशु का नाम बताया गया है। Most of them are Christian writings. और कई जो है मसीही लेखक है। But there are 7 writings written by people who were not Christians. और 7 जो प्रमाण लिखित है जिसके लेखक जो है मसीही नहीं थे। They were not interested in Christians at all. वो लोग मसीहत में बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखने वाले लोग थे। They were not even interested in Jewish faith.
और वो यहूदी विश्वास में भी इच्छा नहीं रखने वाले लोग थे, They were completely belonging to another culture. और वो जो है दूसरी संस्कृति के साथ संबंध रखने वाले लोग थे। But in their historical writings, they mention Jesus. लेकिन उनने अपने ऐतिहासिक लिखावट में यीशु मसीह का नाम बताया है। There's a book called Case for Christ by Lee Strobel. ली स्ट्रोबल के नाम, ली स्ट्रोबल के द्वारा लिखा गया एक किताब है केस फॉर क्राइस्ट करके। In that book, he writes about these 7 documents. और उसमें ये 7 कथन को वो लिखता है। He tells about how secular people actually talked about Jesus. और वो उसमें उस किताब में कहता है कि किस प्रकार से समूह के लोग जो है यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। So Jesus actually existed. He was really there. और सच में यीशु मसीह था, वहां पर था। So this actually I have from the book and I can give it to some people afterwards if you want. और ये जो है उस किताब में से लिया गया हुआ है, और अगर किसी आप में से किसी को चाहिए तो क्लास के बाद मैं वो बता के दे सकती हूँ। I have it as a small PDF, one page PDF document. मेरे पास एक पन्ने का PDF है उसके विषय में। So I can give it on WhatsApp to maybe one lady and one man. और एक पुरुषों में से एक और स्त्री में से, महिलाओं में से एक को मैं उसमें WhatsApp के द्वारा दे सकती And हूँ। then they can share it with whoever is interested. और जो कोई इच्छुक है उनके बीच में आप लोग दे सकते हैं। Okay, so let's look at these 7 documents. और ये 7 प्रमाणों को हम देखते हैं। The first historian is a person named Josephus. पहला इतिहासकार जो था उसका नाम है जोसीफस। Josephus was actually a Jewish man, और योसीफस जो है एक यहूदी मनुष्य था, but he was not interested in the Jewish faith. लेकिन यहूदी होते हुए भी वो यहूदी के धर्म में इच्छुक नहीं था। He was more interested in the Roman culture. और वो रोमियो संस्कृति के में ज्यादा इच्छा रखता था। So he wrote many important historical books. और उसने कई रुचिमय इतिहास के किताब लिखे थे। Even today, people respect the historical works of Josephus. आज के दशक में भी जोसेफस के द्वारा लिखे हुए इतिहास के किताब को लोग मानते हैं। In his historical records, openly he writes about Jesus dying and Jesus being resurrected. और वो उसके इतिहास के किताब में स्पष्ट रूप से और खुले रूप से लिखता है कि यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। He writes it like a historical record. वो एक इतिहास के रिकॉर्ड के समान लिखता है। He's not talking about some story. He's talking about history. वो किसी कहानी के विषय में नहीं बताता है, वो इतिहास के विषय में बताता है। The next person is somebody named Tacitus. और दूसरा व्यक्ति जो था जिसका नाम था टैसिटस, He was a Roman historian. वो जो है रोम राज्य का एक इतिहासकार था। These are all 1st century, 2nd century people. और ये लोग जो थे पहले शताब्दी और दूसरे शताब्दी के लोग थे। Because critics will say, oh, the story about Jesus started hundreds of years afterwards. विरोध करने वाले कह सकते हैं कि ये कहानियां जो है 100 साल पहले हुआ है। They'll say that many years, maybe in 300 AD, 400 AD, then Christians began talking about Jesus is God and all that they say. और वो कहते हैं कि विरोध करने वाले ऐसे कहते हैं कि 300 साल पहले, 400 साल पहले लोगों ने, जो मसीह लोग हैं, उन लोगों ने इस यीशु के बारे में कहना शुरू किया। But if you look at the 1st century, 2nd century records, already Jesus is being mentioned. अगर पहले शताब्दी के, दूसरे शताब्दी के रिकॉर्ड में अगर आप देखो, उसमें भी यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। So Tacitus, this is what he says. टैसिटस ऐसा कहता है। He says in his writing, he writes, उसके लेख में ऐसा वो लिखता है, these Christians are starting a very dangerous superstition, he writes. और ये वो लिखता है कि ये मसीह लोग जो है वो एक भयानक
एक भयानक superstition. गलत I read it in book. अंधविश्वास को हाँ। शुरू कर रहे हैं। They are saying this Christus is God. वो लोग कहते हैं ये क्रिसुस जो है परमेश्वर है। They are saying he rose up from the dead. वो कहते हैं, ये मसीह लोग कहते हैं कि वो मृत्यु से जी उठा है। And multitudes are following him now. और कई संख्या में लोग इसके पीछे हो रहे हैं। He actually writes that in his writing. और वो उसके इतिहास के किताब में ऐसा लिखता है। These documents are still available today in the museums. और म्यूजियम के अंदर जाओगे तो, संग्रहालय में जाओगे तो आज भी वो किताब पाए जाते हैं। Okay, so the third document is by somebody named Pliny the Younger. और तीसरा जो प्रमाण है वो है प्लिनी द यंग। He was the governor of Bithynia. और वो जो है पतीनिया नाम के देश का जो गवर्नर था। He wrote a letter to Emperor Trajan. वो ट्राजन महाराजा को लिखता है। You know, Roman Emperor Trajan, he writes a letter to him. वो ट्राजन नाम के राजा को एक चिट्ठी लिखता है। And he says, everyone is becoming a follower of this Jesus. और वो लिखता है कि हर एक व्यक्ति जो है इस यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं। Our temples are becoming empty. हमारे मंदिर जो है खाली हो जा रहे हैं। So I want your permission to arrest these Christians. और मैं आपकी अनुमति को चाहता हूं ताकि मैं इन लोगों को बंदी बना लूं। And the emperor sends a letter to him और जो राजा है वो उसको एक चिट्ठी वापस भेजता है, saying, yes, you have the permission to arrest the Christians. मेरी तरफ से तुम्हें अनुमति है कि तुम इस मसीह लोगों को बंदी बना लो, But don't kill too many because then there will be riots. और बहुतायत लोगों को मारना नहीं क्योंकि वहां पे विद्रोह उठेगा। Okay, one more person who writes is somebody named Lucian. और एक और व्यक्ति है जो लिखता है जिसका नाम था लूसियन। He says these Christians are not even afraid of death. और वो लिखता है अपने किताब में कि ये मसीह लोग जो है मृत्यु से भी डरते नहीं। They think that Jesus is going to make them immortal. और वो लोग ये सोचते हैं कि उनका यीशु मसीह उनको He will make them immortal. अमर बना देगा। So how to punish them? They're not even afraid of death. उनको कैसे दंड दें क्योंकि वो मृत्यु से भी नहीं डरते। Yes, so and then you have Emperor Claudius. These are Roman emperors, okay, the most powerful people of that time. और उस समय उस दशक के सबसे शक्तिशाली रोम के राजा थे ये लोग। So Roman Emperor Claudius, रोम के राजा क्लाउडियस बोलता है in 49 AD, he 39 एडी में 49 AD, ईस्वी में कहता है। he asks the Jews to leave Rome and go. और वो यहूदियों को बोलता है कि रोम छोड़कर चले जाओ। Because the Jews were making a lot of writing at that time. क्योंकि यहूदी लोग जो है बहुत सारे लेख लिख रहे थे उस Oh no, like riots and rights, violence and all. ROI. Sorry. बहुत सारे विद्रोह कर रहे थे। Because they were very angry with the Christians who are making everyone Christian in Rome. और रोम में जो मसीह बन रहे थे उनके विरोध में। So they were creating problems for the Christians. So at that time, Emperor Claudius gives a command telling the Jews to kindly leave the city and go. और उस समय रोम का राजा क्लाउडियस आदेश देता है कि यहूदी लोग जो है कृपया करके तुम लोग रोम छोड़कर चले जाओ। And then he puts a rule on many marble slabs. और जो है पत्थरों पे वो गुदवा दे के एक नियम गुदवाता है। One of those marble slabs the archaeologists have found. और आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन लोगों ने, गवेषकों ने जो है उसमें से एक पत्थर को उन्हें प्राप्त किया है। In it says anyone who steals from a grave will be punished with death. और कोई भी अगर कब्रिस्तान से चुराएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। Why did he give a command like that? क्यों उसने ये आदेश जारी किया? Because of all the events which were surrounding the death and resurrection of Jesus.
क्योंकि उस यीशु मसीह के मृत्यु और उसके चारों तरफ होने वाली कार्यों के कारण, That is why he gave that rule. और इस कारण से वो नियम को उसने जारी किया। If you look at all these records, Jesus was being discussed by secular people. और अगर हम देखें तो बाहर के लोगों के द्वारा यीशु मसीह के बारे में चर्चा किया जाता था। There are two more persons, Thallus and Phlegon. एक दो लोग और हैं जिनका नाम था थालस और फ्लेगोन। These two people, they talk about the eclipse of the sun. और वो लोग जो है सूर्य ग्रहण के बारे में बोलते हैं। They say on one particular day, in the middle of the day, it became completely dark. और वो उसमें उनके इतिहास किताब में लिखते हैं कि ऐसा एक दिन आया जिस दिन सूर्य जो है अंधेरा, सूर्य जो है In the middle of the day, it became completely dark. और दिन के मध्य में ही सूर्य जो है काला पड़ गया। And they say there was a large earthquake. और वहां पर भूकंप भी हुआ था। So these are all historical records about our Jesus. और ये सारे जो है इतिहास में दिखने वाली रिकॉर्ड है हमारे यीशु मसीह के विषय में। So we can very confidently place our faith in Jesus. और हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हम यीशु मसीह पर विश्वास लगा सकते हैं। All right. So yeah, we are almost out of time. Anyone has any questions regarding the doctrine of Christ? समय खत्म हो रहा है। किसी को अगर इस यीशु मसीह के सिद्धांत के विषय में कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। Okay, if there are no questions, then maybe we can close with a word of prayer. अगर सवाल नहीं है तो हम प्रार्थना के साथ ये क्लास खत्म करेंगे। पूछिए। Dream. He's still in his dream. Still clinging to the dream. Okay, there was a question asked yesterday about where do dreams come? और एक सवाल पूछा गया था कि सपना कहाँ से आता है? Does it come in the spirit or in the mind? क्या वो आत्मा में आता है या मन में आता है? Is that the question? क्या वही था सवाल? Correct. Okay. You know, if you look at, there are many scientific articles being written today about dreams. और आज जो है वैज्ञानिक तरीके से कई लेख लिखे गए हैं सपने के बारे में। Animals dream, humans dream. मनुष्य सपना देखता है, जानवर भी सपना देखता है। Because dreams are very important to live. क्योंकि सपना जो है बहुत मुख्य बात है जीने के लिए। The brain has to have dreams to be able to continue surviving. और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग जो है उसमें सपना होना जरूरी है। Because during the dream, the brain organizes all the information. और सपने के समय पर हमारा दिमाग जो है सारे चीजों को संग्रहित करता है। All the information which the animal or person is collecting during the day, that gets organized in the night during the dream time. और सपने देखने के समय पर जानवर हो या मनुष्य हो, वो जो है सपने के समय पर जो कुछ वो दिन के समय पर देखता है या कहता है, सुनता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। So that is why if a person does not dream, he will actually die. इसीलिए विज्ञान कहता है कि अगर एक व्यक्ति सपना ना देखे वो मर जाएगा। So every brain, whether you remember the dream or not, every human brain and animal brain dreams. और आपके दिमाग में जो सपने देखे उसको याद हो या ना याद हो, जानवर हो या मनुष्य हो, वो सपना देखता है। But sometimes God uses the dreams for His purposes. लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि परमेश्वर जो है कुछ सपने उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। So sometimes God speaks to people through the dream. कभी-कभी परमेश्वर जो है सपनों के द्वारा मनुष्य से बातचीत करता है। So dreams are a normal thing which happen in the mind. और सपने जो है साधारण चीज है जो हमारे मन में होता है। But sometimes God uses this normal
process for his purposes. और कभी कभी जो ये साधारण से होने वाली प्रक्रिया को परमेश्वर उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। Okay, so I hope that is मैं विश्वास करती हूँ कि वो आपके समझ में आ गया। yeah. So yeah, if you can close with a word of prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जो आज आपने ये समय हमें दिया ताकि हम आपके सिद्धांतों के बारे में यीशु मसीह पढ़ सके और इतने स्पष्ट रूप से हमें पढ़ सके। पिता, पाप के सिद्धांतों के विषय में भी हमने पढ़ा पिता परमेश्वर, और आपने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया ताकि आप उनके द्वारा आपके ज्ञान को हम में डाल सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, और ज्यादा आप अपनी बेटी को इस्तेमाल करें। हर एक व्यक्ति, हर एक छात्र यहाँ पर जो हैं जिन्होंने ये पाठ आज 2 पाठ आज सीखा है, वो उनके जीवन में एक अनुग्रह का कारण बन जाए। परमेश्वर, आपका वचन जैसे कहता है, ना सिर्फ हम सुनने वाले बने वरन उस पर चलने वाले बने। उसी प्रकार जो सिखाया गया है उसको हमारे जीवन में इस्तेमाल में ला सके और दूसरों को भी शिक्षा उसमें से दे सके। पिता, हम अपने अपने स्थानों में जाते हैं, हमें सुरक्षित लेकर आए, सुरक्षित वापस लेकर जाएं। पिता, सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।